العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. یہ دوسری صفت ہے متقی کی. پہلی صفت تھی کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری ہے ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ سورۃ العنکبوت کے اندر آیت نمبر 45 ہے، اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ برائی سے بچ جاتا ہے. اب برائی کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، جس کو گناہ قرار دیا ہے، اور روزمرہ کی جو برائی ہے وہ جھوٹ ہے، دغا بازی ہے، حرام خوری ہے، زنا کاری ہے، شراب نوشی ہے، یہ برائیاں ہیں. تو ان سب کا علاج قرآن نے بتایا اقیم الصلاۃ. متقی اس لیے ہی متقی ہے کہ وہ نمازی ہے، اور نماز کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچا ہوا ہے. اب ادھر ایک سوال ہے کہ بعض لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود گناہ بھی کرتے ہیں. جیسے بعض ممالک کے اندر تو دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ جو سب سے بڑا نمازی ہے، جب وہ اپنی دکان پہ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ سب سے بڑا دغا باز ہوتا ہے. دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ نماز پڑھ کے نکلا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، اور جب دکان پہ بیٹھے گا تو وہ جھوٹ پہ جھوٹ اور بہت کچھ کرتے ہیں. لوگ یقین رکھتے ہیں ان کی نماز پہ اور ان کی نیکی پہ. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بندہ نماز بھی پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ نماز گناہ سے روکتی ہے؟ یہ ممکن ہے. اس کی وجہ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ جیسے نماز پڑھنی تھی ویسے اس نے پڑھی نہیں ہے. اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ ایک بندہ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میرا گلا خراب ہے، مجھے شدید کھانسی ہے، مجھے میڈیسن دے دو. تو کیا ہوا؟ اس نے دے دی. اب اس میں دو چیزیں اس نے بتائی تھی. اس نے کہا کہ یہ میڈیسن تو نے صبح دوپہر شام کھانی ہے، اور ٹھنڈی اور کھٹی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. اب اس نے میڈیسن لے لی. اس نے کس لیے دی ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اس نے کیا کیا کہ بجائے صبح دوپہر شام کھانے کے ساری اکٹھی کھا لی، یعنی جیسے ڈاکٹر نے بتایا ویسے نہیں کھائی. دوسرا اس نے یہ کیا کہ جو ڈاکٹر نے اس کو پرہیز بتایا تھا وہ بھی نہیں کیا، ٹھنڈی چیزیں بھی استعمال کرتا رہا. تو صبح جا کے ڈاکٹر پہ اعتراض کرے کہ میں ٹھیک نہیں ہوا، تو اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں. ایسے ہی ایک بندہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتایا ہے ویسے پڑھتا ہی نہیں ہے، نماز نبوی نہیں پڑھتا. وہ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے میں نے پڑھی ہے، تو نہیں پڑھتا. وہ نماز نبوی نہیں پڑھتا، کوئی اور نمازیں اس کے پاس ہیں وہ پڑھتا ہے، تو وہ برائی سے کیسے رکے گا؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بتائی ہے وہ تو اس نے پڑھی ہی نہیں ہے، تو برائی سے کیسے رکے گا؟ اور دوسرا جو آپ نے پرہیز بتایا ہے کہ جب نماز پڑھ رہا ہو تو پھر خشوع خضوع کے ساتھ اس کا دھیان کدھر ہو؟ نماز کے اندر. وہ پرہیز بھی نہیں کیا اس نے، نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ اپنے حساب کر رہا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، فلاں دکان کا یہ حساب ہے، فلاں کا یہ حساب ہے. تو پھر وہ کیسے نماز برائی سے روکے گی؟
बुराई से तो वो नमाज रोकेगी जो सुन्नत के मुताबिक हो और खुशू खुजू के साथ पढ़ी जाए। फिर वो बंदा ऐसे होगा कि मिसला इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। सुन इब्ने माजा के अंदर हदीस नंबर 1089 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल-अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलाह फमन तरकहा फ़क़द कफ़र, कि हमारे दरमियान और उनके दरमियान जो वादा है, जो मुआहदा है, वो किसका है? नमाज का है। जो फ़र्क है वो नमाज का है। हम में और उनमें जो फ़र्क है वो नमाज का है। फमन तरकहा फ़क़द कफ़र, जिसने उसको छोड़ दिया उसने क्या किया? कुफर किया है। तो मेरे भाइयों, ये इतना बड़ा गुनाह है कि बंदा रब के साथ कुफर कर लेता है। देखिए, नमाज किसी हालत में भी मुआफ़ नहीं है। हत्ता कि बंदा अपने दुश्मन के सामने मैदान क़िताल में खड़ा है तो उधर भी नमाज मुआफ़, उधर भी मुआफ़ नहीं है। हालांकि हो जानी चाहिए थी, उससे सख्त मरहला और क्या हो सकता है, लेकिन उधर भी नमाज मुआफ़ नहीं है। ठीक है, अल्लाह अकबर। सही बुखारी हदीस नंबर 8 है। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस्लाम की जो बुनियाद है ना, वो 5 चीज़ों पे है, जिनमें से एक नमाज है। तो देखें, साल में जो फ़र्द इबादत हैं, पहले नंबर पे ज़कात है। वो हमारे पास उतना निसाब नहीं है, हमारे पास उतने पैसे नहीं है, हमने नहीं अदा की, पहली गई। दूसरी हज है, वो हमने कर लिया है या कर लेंगे, वो भी ज़िंदगी में एक दफ़ा ही है, वो भी गई। तीसरा रोज़ा है, वो साल में एक दफ़ा आएगा, वो गर्मी की वजह से हम नहीं रखते। चौथी तौहीद है, उसके वैसे हम खिलाफ हैं। और 5वीं नमाज है, वो वैसे नहीं हम पढ़ते हैं। क्या हम मुसलमान हैं, इस्लाम के ठेकेदार हैं, दीन के दावेदार हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज दीन का सुतून है। जिसने इसको छोड़ दिया उसके बारे में बड़ी सख्त वईद है। और सही मुस्लिम हदीस नंबर 22 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उमिरतु अन उक़ातिलन नास हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व युक़ीमुस्सलाह व यु'तुज़्ज़काह फ़इज़ा फ़अलू असमु मिन्नी दिमाअहुम व अमवालहुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों के साथ लड़ूं हत्ता कि वो तौहीद परस्त बन जाएं, हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या मतलब? वो तौहीद, ये कह सकते हैं ना हम कि वो तौहीद परस्त बन जाए। व अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, और वो मुत्तबे सुन्नत बन जाए, मुत्तबे रसूल बन जाए, ऐसे समझ लें। मुझे हुक्म दिया गया है मैं उनके साथ लड़ूं। कब तक? जब तक वो शिरक को छोड़ ना दें। नंबर 2, जब तक वो मुत्तबे यानी तकलीद को छोड़ ना दें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मुझे हुक्म दिया गया है अल्लाह की तौहीद को भी माने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिसालत और नबूवत वाली तौहीद है उसे भी माने। मैं उनसे लड़ता रहूं जब तक तौहीद परस्त ना बन जाएं, मुत्तबे सुन्नत ना बन जाएं, व युक़ीमुस्सलाह, और नमाजी ना बन जाएं, और ज़कात अदा करने वाले ना बन जाएं। जिसने ये 4 काम कर लिए, असमु मिन्नी दिमाअहुम व अमवालहुम, तो फिर उन्होंने मुझसे अपना माल और खून बचा लिया है, फिर उनका मामला अल्लाह के साथ है। यानी क्या मतलब कि फिर वो मुसलमान है। इस हदीस से ये साबित होता है कि मुशरिक मुसलमान नहीं है, जो मुत्तबे सुन्नत नहीं है वो मुसलमान नहीं है, जो नमाज नहीं पढ़ता, ज़कात अदा नहीं करता, वो मुसलमान नहीं है, उसके कुफर में कोई शक नहीं है। और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब उन्होंने फरमाया कि मैं इनसे किताल करूँगा, वो रस्सी भी जब तक ना देंगे जो रसूल सल्लम को देते थे। लोगों ने कहा इनकी तो बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं, ये तो इतने बड़े बड़े मुसलमान हैं। और हज़रत अबू बकर फरमाने लगे ये ज़कात नहीं देते, जिसने ज़कात अदा नहीं की गोया उसने इस्लाम से अपने आप को दूर कर लिया है और इस्लाम का एक सुतून उसने गिरा दिया है। तो मेरे भाइयों, नमाज की इतनी अहमियत है। सूरह रूम आयत नंबर 31 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, अकीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, कि नमाज कायम करो और मुशरिक न बनो। इसका मतलब ये हुआ कि जो बेनमाज है वो काफिर भी है और मुशरिक भी है, दोनों गुनाह उसके अंदर मौजूद। और ये दोनों गलतियां, दोनों गुनाह कबीरा है और मूजबे जहन्नम है, बंदे के ऊपर जहन्नम वाजिब हो जाती है इनसे।
सही मुस्लिम हदीस नंबर 82 के अंदर हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, इन्ना बैन रजुली व बैन शिरक वल कुफ्र तर्कुस्सलाह, कि मुसलमान बंदे मुशरक और काफिर के दरमियान जो फ़र्क है वो नमाज का है। तो मेरे भाइयों, नमाज की इतनी अहमियत है कि जिसने इसको छोड़ दिया उसने कुफ्र कर लिया। ये कुफ्र ही है और बहुत बड़ा कुफ्र है। कुफ्र के साथ उसने शिरक भी कर लिया जिसने नमाज को छोड़ दिया। तो मेरे भाइयों, नमाज पढ़ना ही इस्लाम है, इसके बगैर गुजारा नहीं। और कुरान में अल्लाह फरमाते हैं सूरह अल-मुद्दस्सिर के अंदर पारा नंबर 29 में कि जो बेनमाज है वो जहन्नम के अंदर जाएगा। और अल्लाह फरमाते हैं जब जहन्नम में चला जाएगा खुद मानेगा कि लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। और सिर्फ जहन्नम के अंदर ही नहीं गया, आगे अल्लाह फरमाते हैं फमा तनफ़हुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन, दुनिया की कोई ताकत इसके बारे में, बेनमाज के बारे में दुनिया की कोई हस्ती सिफारिश करती रहे, अल्लाह फरमाते हैं मैं उसकी सिफारिश कबूल नहीं करूँगा। इसका मतलब है कि बेनमाज दायमी जहन्नमी है और कोई भी सिफारिश करेगा तो अल्लाह उसकी सिफारिश कबूल नहीं फरमाएंगे। तो मेरे भाइयों, ये इतना बड़ा गुनाह है और ये मुत्तकी लोगों की ये सिफ्त है कि वो नमाज पढ़ते हैं, नमाज कायम करते हैं। अल्लाह ताला हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए और खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दवाया अल्हम्दुलिल्लाह।